तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड तो वो किस तरह का होगा डियर स्टूडेंट्स। सो फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई प्लॉट द ग्राफ, और जब भी मैं स्पीड का ग्राफ प्लॉट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सो उस ग्राफ में क्या होता है कि डिस्टेंस, है ना, उसमें क्या होता है डिस्टेंस आएगा। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट, जस्ट नाउ वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि whenever we plot the graph of speed, the thing that comes on x axis is the distance, और जो y axis पर डिस्टेंस, और x axis पे जो आता है बच्चों वो आता है टाइम। और टाइम को हम बताते हैं सेकंड्स में, और डिस्टेंस को हम बताते हैं मीटर्स में। इज इट क्लियर? तो देखिए अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो देखिए अब डिस्टेंस आपको क्लियर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोलता हूँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम, एक जैसा, ओके, और सेम। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो सेम मतलब क्या, एवरी टाइम स्पीड विल बी सेम। तो ये कब पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, okay, and this is 20, okay. So when this thing is possible, so it is 1, 2, 3 and 4. So dear students, if we see here distance upon time, so 5 by 1 will be 5, okay, so there will be one point like this. Then 10 by 2, if we plot 10 by 2 at 2 seconds, if the speed is Five. coming, is if the distance is coming 10, so it will be 10 by 2, that is 5. At 3 seconds, for example, the distance traveled is 15. For example, the distance traveled is 15. So what will be the ratio, distance upon time? Can you tell me? So the distance upon 5 time, by 1. 15 upon 3. बिल्कुल 15 upon 3. So it is 15 again upon 5. So dear students, if we just join these points, अगर मैं इन points को जोड़ देता हूँ बच्चों, तो क्या होगा dear students? If I just join these points, then dear students, what will happen? I will get a straight line. So this is line the, will appear. yeah. So this is the graph of uniform speed. Now, dear student, the second topic is variable speed. If I want to plot the graph of variable speed, dear students, okay. So ये हो गया बच्चों टाइम, और ये क्या हो गया डिस्टेंस। ओके बच्चों, सो नाउ वेरिएबल स्पीड मींस एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। हर इंस्टेंट पर, मतलब इस पर मुझे जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है, ओके। इस पर मुझे जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी डिफरेंट, इस पर मुझे जो स्पीड मिलेगी सॉरी 3 सेकंड पे जो मुझे डिस्टेंस मिले स्पीड मिलेगी दैट इज डिफरेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई प्लॉट दिस थिंग, तो अगेन वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1, देन हियर डिस्टेंस इज 10 डिवाइडेड बाय 2, हियर द डिस्टेंस इज 3, डिस्टेंस इज 20 20 by 3. डिवाइडेड बाय, सो एवरी टाइम यू सी इसका आएगा आंसर 4, इसका आएगा आंसर 5, एवरी टाइम यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर। सो व्हेन यू विल प्लॉट, आप प्लॉट करके देखिएगा बच्चों, तो यू विल फाइंड कर्व लाइक दिस is a straight line, it will not come straight line, rather it will be graph like this। आ रहा है समझ में आपको what I am saying? So this will be Yes, like sir. Yes, sir. 8 2 second, like मतलब like this, ऐसा कुछ जाएगा ये ग्राफ, okay। So here it will be like this and like this. So this is the graph of variable speed, okay dear students. Now we'll move to the some more graphs dear students. For example, this graph, what this graph says, what this graph says dear students, this is distance, we represent distance by x and time by this, okay। So what is this distance, ये graph क्या बता रहा है जल्दी से बताइए, what this graph says? Sir, the object is at rest. Very good, an object is at rest because the same distance, for example 10 meters, so it is, time is changing every second, time is changing but the distance is same, that means the object is at rest, okay dear students. Now let us move further to the other graphs.
let us see this graph here, students. For example, this graph here, this here we have discussed. Now, for example, this graph. Okay, or if the it is written that position or distance are same thing. So position time. Okay, so dear students, position time. What do you mean by this? Can you tell me which graph is this? Direction. Is the speed increasing or Speed is decreasing? in negative. Decreasing or increasing? Decreasing. Here the speed is how much? Can you tell me? Here at what is the speed? Because speed is equal to distance upon 0. time. So at this point, dear student, you see this is the distance. This is the distance axis. So it will be in this axis. इस axis पे distance कहाँ zero होगा? यहाँ पर. तो मतलब इस पूरी x axis पर distance zero होगा. Means इस पर distance हो गया zero. तो इस point पर distance zero मतलब velocity zero. ठीक है? Are you getting? So this is t equal to 0. Yes. Okay. So this is known as negative velocity. ठीक है? इसको क्या हम बोलेंगे? Negative velocity. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Let's see some more graphs. Okay, I hope you can understand the graphs. Okay, now you can apply your common sense in drawing the graph. Okay, now dear students, just come to the very important analysis. See, what we have discussed today is the 15th day of our class of this chapter. So what we have discussed, dear students, is v is equal to u plus at. Okay, and s is equal to ut plus half at square. V square minus u square is equal to 2as. Okay, dear student. So this equation you have to use. Okay, dear students, ध्यान से यूज करिएगा इसको. देखिए अब इसमें समझिए बात को. If I say that a ball is released, please ध्यान से समझिएगा. If I say that from this is the height, this is the ground, dear students, and if I say that a ball is released from here, released, so क्या so आपने उसमें कुछ एनर्जी लगाई है क्या इस बॉल को नीचे गिराने में? It was in No, sir. it was in your hand. Okay, so what will be the initial velocity? Zero. 0. 0. Zero. So when anything is released, बच्चों जब कोई भी चीज रिलीज होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0. एंड इफ एनीथिंग इज बीइंग ड्रॉप डाउनवर्ड देन द एक्सीलरेशन इज कंसिडर्ड टू बी 9.8. तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि इट इज ड्रॉप्ड, रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर, then you have to use the acceleration as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, आप कर पाएंगे ऐसा? और फिर कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे. they can ask you anything. okay, they can ask you anything कि हाइट कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा. तो आप निकाल पाएंगे, ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप इन इक्वेशंस को यूज करके? बोलिए बोलिए बच्चों जल्दी से. Yes, sir. Yes, चलो. sir. सर इसमें v भी 0 होगा ना? यस v जीरो नहीं, v जीरो नहीं होगा. v क्यों जीरो होगा इसमें? फाइनली तो वो यहाँ पर टच वो करेगा. स्टॉप हो जाएगी. नहीं, स्टॉप होगा तब. स्टॉप होगा तब, समझिए बेटा. स्टॉप होगा तब होगा ना, जैसे ये यहाँ से बॉल गिरा. आप एक बार बॉल गिरा के देखिए तो एक बार में गिर जाता है क्या? बॉल रुक जाता है क्या एक बार में? सर बाद में तो स्टॉप होगा ही ना. नहीं, जब होगा तब वेलोसिटी 0 होगी. जस्ट ड्रॉप होने में नहीं होगी ना 0. यहाँ से यहाँ ड्रॉप होने में, जैसे यहाँ पर बॉल ड्रॉप हुई तो यहाँ पर 0 हो जाएगी क्या वेलोसिटी? यहाँ पे नहीं होगी. वो ऐसा टप्पा खाता जाएगा. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लेट से 4 सेकेंड्स वो 0 होगी स्पीड. लेकिन जब वो नीचे ड्रॉप हो रही तब तो नहीं 0 होगी ना. ओके. Yes, sir. अब सिमिलरली समझिए बच्चों, व्हेन वी थ्रो एनीथिंग अपवर्ड्स, जब भी हम अपवर्ड कोई चीज थ्रो करते हैं और अगर हमसे बोला कि ये हाइट निकालो, तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? सो देखो, व्हेन वी थ्रो एनीथिंग देयर विल बी सम इनिशियल वेलोसिटी. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Whenever we will Yes, throw sir. anything there will be some initial velocity. अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से. आपसे क्या पूछा है कि ये ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर जाके ये यहाँ पर रुक जाएगा ना, यहाँ पर कहीं पर ये रुकेगा तभी तो वापस आएगा ना. Yes, sir.
जब तक ये रुकेगा नहीं बॉल यहाँ पर, जब तक ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक ये नीचे आ सकता है क्या बताइए? No, sir. तो यहाँ पर इसको नीचे आने के लिए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इस वाले रूट की बात कर रहा हूँ, इस रूट के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फिर ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, ये होगा सेकंड ऑपरेशन, समझिएगा। सेकंड ऑपरेशन में फिर क्या होगा? फिर इस वाले ऑपरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी समथिंग होगी। समझ में आ रही है बात? इसमें 2 केस Yes. समझ में आ रहा है आपको? तो उसमें आपसे ये Yes, sir. पूछ सकता है कि जब हमने हमने कोई भी चीज ऊपर थ्रो करी है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो करा, जब वो यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब वो रिटर्न हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ जब थ्रो करा है तो यहाँ की हाइट निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो? यस, वी कैन कैलकुलेट बाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर स्टूडेंट्स, विल बी पुटिंग द वैल्यू, v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली इक्वेशन हमारे कोई काम की नहीं आएगी। देन वील यूज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? माइनस 9.8, Minus 9.8. है ना, और v तो हमारा 0 हो गया और u हमको गिवन है, तो हम s निकाल सकते हैं यहाँ से, बोलिए। आई थिंक वी कैन Yes. कैलकुलेट s, है ना। Yes, sir. तो ये तीनों इक्वेशन में आपको ये दिमाग लगाना है, ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। मैंने अभी दे दिया, इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको बोला कि यहाँ पर कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो यहाँ से मार्केट जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, ये किसी एक्स वेलोसिटी से जाता है, एक अलग वेलोसिटी से जाता है, रिटर्न अलग वेलोसिटी से होता है, और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, है ना, जो भी हमारा लेट से m ये डिस्टेंस है हमारा। तो अब आपसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो कैसे निकाली थी हमने एवरेज वेलोसिटी? हाउ टू कैलकुलेट? टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? तो टोटल टाइम, ओके, एंड दे हैव आल्सो गिवन अस, हमको उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर? वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस दिया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल, तो लेट अस टेक वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लीजिए है 8 और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है m, जो डिस्टेंस है ये है 2, और रिटर्न की वेलोसिटी उन्होंने दी है 10। तो क्या हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड? यस, वेरी इजीली। कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फर्स्ट वाले राउंड के लिए। सेकंड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो हमको पता है डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से क्या निकालना है हमको? टाइम। वी नीड टाइम बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? ओके, और यहाँ पर भी हमको टाइम निकालना है, सो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, है ना। यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी पता है ना, वेलोसिटी पता है, यहाँ से टाइम आ जाएगा t1 t2, और टोटल डिस्टेंस निकालना हो आपको तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, इधर से जितना जाएंगे उतना ही इधर से डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? बोलो। तो 2 इधर से है तो 2 इधर से होगा, तो 2 डिस्टेंस आने का और 2 डिस्टेंस वापस जाने का, तो क्या जाएगा? 2 + 2 डिवाइडेड बाय टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया t1 + t2। ये क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? बोलिए, एनी डाउट इन दिस? Yes. ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2 चीजें रखता हूँ, एक ये मेरे पास है और एवरेज, ये मेरे पास 2 ग्राफ है। एक ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, एक बच्चों मेरे पास ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, एंड अनदर जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट दैट इज ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब आप समझिए कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक इस तरह का मोशन हुआ मतलब कोई ट्रेवल करा, इस तरह का कोई ट्रेवल करा, ठीक है, और अपने से बोला कि दिस इज द टाइम, ठीक है, दिस इज 5 सेकेंड्स एंड दिस इज 2 सेकेंड्स, और उन्होंने हमको बोला कि प्लीज कैलकुलेट द वेलोसिटी, है ना। सिमिलरली इधर हमसे उन्होंने बोला प्लीज कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो अब हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज को मैं डेल से बता रहा हूँ, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बिल्कुल क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस विल बी अवर t2, दिस विल बी अवर t1, दिस विल बी अवर x2, दिस विल बी अवर x1। तो क्या हो जाएगा? चेंज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स t2 माइनस t1। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली बच्चों क्या हो जाएगा? सिमिलरली यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये पता है सबको, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 9th क्लास का कंसेप्ट है ये, है ना।
तो समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज T2, दिस इज T1, दिस इज V2, दिस इज V1, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बोलो। सो अगर हमको इस तरह का सिंपल डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर हमको ये सब दिया हुआ है कि ये 20 है डिस्टेंस और ये हमारा 10 है, तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं वेलोसिटी। सब बच्चे क्लियर है क्या, बोलिए। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन Yes. दोनों हम इजीली निकाल सकते हैं अगर ये T1 T2 V1 V2 और ये सब दिया है तो इसको बोलते हैं बच्चों एवरेज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, Yes, sir. एवरेज एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल, और ऐसा नहीं है बच्चों। और अगर अब हमको बोला है डियर स्टूडेंट्स कि यू जस्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी और द, पहले हम वेलोसिटी को समझते हैं फिर हम एक्सीलरेशन पे आएंगे, ठीक है। अब क्या बोला डियर स्टूडेंट्स हमको कि वी डोंट वांट टू डिटरमाइन इनटू दिस, वी वांट टू डिटरमाइन एट 4 सेकंड्स ओनली, एट 4 सेकंड्स ओनली। so it is very difficult for us to plot these things on the paper। so हमने क्या करा कि और ये जो टाइम डिफरेंस है हमारा, हमने इसका टाइम डिफरेंस लिया था 4.005 और ये लिया था 3.995, ठीक है। इतना कम हमने डेल्टी लिया, लेकिन ये डेल्टी कितना होगा, बहुत ही कम होगा, 0.001, ठीक है। तो अब हमको ये प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला वही है डियर स्टूडेंट्स, अभी भी वही फॉर्मूला, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अभी भी डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही है हमारे पास, लेकिन ये प्लॉट करने में हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। हम x2 और x1 नहीं निकाल पाते हैं। तो हमने ये प्रॉब्लम रेस करी, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, जब भी डेल डिनोमिनेटर जीरो होता है, जीरो के लगभग बराबर होता है, ओके, और हमको चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना होता है, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, आप लोग इसमें डिफरेंशिएशन का फंक्शन यूज कर लो। तो हमने बोला थैंक यू वेरी मच, हम ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। तो जब किसी इंस्टेंट पे निकालने को बोला जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पर हमको बोला जाए कि 4 सेकंड पे निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे बताइए। हमको एक्सीलरेशन है ये, है ना, तो एक्सीलरेशन, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, तो बात वही हो जाएगी कि ये जो डेल टी है, जो चेंज है, ये बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा चेंज है, तो हम साइंटिस्ट के पास गए, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, इसके लिए आप डिफरेंशिएशन का फंक्शन यूज कर लो। तो डेल वी बाय डेल टी, जहाँ पर की जो डेल टी है वो बहुत छोटा है, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फंक्शन यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो हमने ये फंक्शन यूज कर लिया। मतलब आज के बाद आपको क्या समझ में आया, whenever we have to calculate instant acceleration और instant velocity dear students, what we will be using, बताइए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। आया समझ में सबको। अब देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ज्यादा परेशान मत हो। हमको बोला 3t² प्लस 9। सो हाउ टू सॉल्व दिस, ये समझ लो आप पहले। d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस लगता है तो ये सेपरेट हो जाता है, तो 3t² प्लस d बाई डी टी ऑफ 9। आया समझ में, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों फर्दर सॉल्व, तो बहुत सिंपल होता है डियर स्टूडेंट्स। 3 बाहर आ जाता है, जो टी का दोस्त, देखो जो एक ही दोस्त हैं, एक ही क्लास के 11th के बच्चे हैं, साथ में रहेंगे, बाकी सबको ये बाहर कर देता है डिफरेंशिएशन। तो ये भी 11th के जैसा एक जैसा दिख रहा है ना, टी और टी, तो टी और टी अंदर रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। अब ये तो इसका दोस्त ही नहीं, तो इसको बोल देगा कसु काम छे नथी तो निकलो। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब t², इसका फॉर्मूला होता है बच्चों d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n(t(n-1), ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या फंक्शन हो गया डियर स्टूडेंट्स, d बाई डी टी ऑफ t², तो क्या हो जाएगा 2t टू द पावर 2-1, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 इंटू टी टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 1। अब फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको ऐसा ही नहीं बोलेंगे, हमको बोलेंगे 4 सेकंड निकालना है ना, ये हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हमको बोला कि इंस्टेंट वेलोसिटी हमको कितना निकालना है बच्चों, 4 सेकंड, तो 6 4 24। आया समझ में सब बच्चों को, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. अच्छा अब Yes, sir. एक और चीज मैं सिखाता हूँ बच्चों आपको। फॉर एग्जांपल कि एक इस तरह का हमने क्वेश्चन करा, एक इस टाइप का और क्वेश्चन आप समझिए कि एक पाथ है जिसमें मान लीजिए 5 मीटर्स के लिए कोई पर्सन जा रहा है और उसको लगते हैं 3 मिनट्स, ठीक है। और नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए कोई जाता है और उसको लगते हैं
3 मिनट्स अगेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपसे बोला कि आप निकालिए कि ये हो गया कितना 3 और 3, और आपसे बोला कि आप निकालिए 8 मिनट्स बाद। ओके 8 मिनट्स बाद या फिर 8 सेकंड्स बाद कर लेते हैं। 3 मिनट में तो कोई नहीं जाता, सेकंड्स में पहुंच जाते हैं, तो इतना कम समय है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कोई बोलता है कि आपको 3 सेकंड्स बाद यहाँ तक और 3 सेकंड बाद यहाँ तक गए, और आपसे कोई पूछता है कि 9 सेकंड बाद बताइए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द क्वेश्चन इज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, समझिए बात को। तो इस टाइप को बोलते हैं ब्रेकअप टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको देखो, अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at²। अब आफ्टर 9 सेकंड्स हमको कुछ भी नहीं दिया है बच्चों, है ना, ओनली टाइम दे दिया है। तो 9 सेकंड तो आप पुट कर दोगे यहाँ पर, u इंटू 9 प्लस 1/2 a इंटू 9। लेकिन बच्चों बाकी अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए हम, ना हमारे पास u है ना हमारे पास a है। तो इन दिस टाइप ऑफ सब क्वेश्चन, 9 का होल स्क्वायर नहीं होगा? हाँ 9 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास तो बच्चों ना ही u है ना ही हमारे पास क्या है, a है। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। इसमें पहले आप लगाइए s इज इक्वल टू ut पहले केस के लिए, तो हम इसको बोल देते हैं s1, इसको बोल देते हैं बच्चों s2। आया समझ में। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये यहाँ तक का डिस्टेंस है ना 10 मीटर्स, ये 10 मीटर इतना हुआ और 5 मीटर ये इतना हुआ। ठीक है, तो ये हुआ 3 सेकंड में इतना ट्रेवल करा, और नेक्स्ट 3 सेकंड्स में इन्होंने इतना ट्रेवल करा। तो देखिए बच्चों s1 बराबर क्या हो जाएगा, ut1 प्लस 1/2 a t², है ना। अब मुझे एक बात बताइए, s1 आपको दिया है, यस s1 इज गिवन, कितना दिया है बच्चों, s1 आपको दिया है 5 मीटर्स। ठीक है ना। u आपको नहीं दिया है तो हम वैसा का वैसे ही रखते हैं। टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड्स इंटू 3 प्लस 1/2 a आपको नहीं दिया है। ठीक है, और फिर आपको क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या दिया है, टाइम दिया हुआ यस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया s1। वैसे ही बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा s2 का इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही हमारा क्या बन जाएगा, s2 का इक्वेशन बन जाएगा ut। तो s2 कितना डियर दिया है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए s2 आपको दिया हुआ है 10 मीटर्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका u आपको अगेन नहीं दिया है, फिर 3 सेकेंड्स प्लस 1/2, और ये a इज इंटू 3 सेकेंड्स। यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को। तो ये जो है इक्वेशन 1 यस हो सर। गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये देखो, अब नाउ मैं आपको कब से पढ़ाते आ रहा हूँ 9th से, कि whenever there are two equations 1 and 2 and there are two unknowns, जब भी दो इक्वेशन होती है, दो अननोन होते हैं, then we can determine u and a। तो आप u और a डिटरमाइन कर लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ऐसा करना है आपको। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए, Yes. है ना। तो इस तरह का यस क्वेश्चन, हाँ, तो ये हमने अभी तक बच्चों पढ़ाई करी है, और इसी पर मैं आपसे इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे